Hello, my dear children. Today we are going to start with class 6 science, chapter number 9, methods of separation in everyday life. Let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be introduction, pure substances and mixture, properties of mixture, methods of separation of substances, separation of insoluble solids from liquids, filtration, condensation, separation of a mixture of two liquids, use of more than one method of separation, solution, concept of solubility. So have a look on the warm-up. You must have seen preparation of tea in your home. After boiling tea leaves in water, the tea leaves are separated from the mixture. Which object is used to separate tea leaves from the mixture? बताओ, जब आप घर में चाय बनाते हो तो चाय को किस में सेपरेट करते हैं? By using a sieve. Can you name another object in the kitchen that is used for separation of a material? किससे हम सेपरेट करते हैं आपके घर में और क्या है ऐसा? सीव होता है. सीव के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आप छन्नी यूज कर सकते हो. सो उसे भी आप, जिससे आप आटा छानते हो, है ना? सो बाय दिस यू कैन सेपरेट द मटीरियल्स. इंट्रोडक्शन. We have already learned about different components of food. It is important to eat fresh and healthy food. This is possible only if the food is clean and free from all undesired substances. इसीलिए बच्चों हमें सेपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी और यूटिलाइजेशन के लिए जो हमारे ज़रूरी है उन चीज़ों को हम ईजिली उन चीज़ों से सेपरेट कर सके जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. We eat some food items raw, but most of the food item we consume is cooked. We need to separate the harmful or useless substances that may be present in it. जैसे कि हमने बात करी थी चाय की. चाय आप बनाते हो, उसके बाद आप उसको छानते हो. क्यों? क्योंकि आपको उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करना होता है. वो हमारे लिए उतनी यूजफुल नहीं है. इसलिए हम सेपरेशन की टेक्निक्स को यूज करते हैं. At times, even useful substances need to be separated if they are to be used individually. The substance to be separated may be particles of different size of material. So, it is important to know about various methods of separating substance that has been mixed together. इसीलिए हम substances को separate करते हैं क्योंकि हो सकता है उनके sizes में different हो. साइजेस में पार्टिकल्स में उनका जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो डिफरेंट हो, इसीलिए इसी बेसिस पर हम उनको सेपरेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल सॉइल. अगर आप सॉइल की ही बात करें तो सॉइल में सैंड भी होती है, क्ले भी होता है, मिनरल सॉल्ट्स, डेड एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं. Water contains dissolved salts and gases in it. Air is made up of several gases, smoke, dust particles and water vapor. The food we eat, the milk or tea which we drink, all are mixtures. To obtain butter from milk or tea from a mixture of tea leaves, we need to separate them by some different methods. Thus, the substances which are useful to us are separated from a mixture in different ways based on their properties. तो बच्चों अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से बने होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का आप बड़ा पीस ले लो या गोल्ड का आप बहुत छोटा सा पीस ले लो, जितना मर्जी आप उसको ब्रेक कर लो, बना होगा वो किसका? वो सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स का ही बना होगा. दैट मीन्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस. Any substance which is made up of only one kind of particle, जिसको हम molecules या atoms बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं pure substance. Properties of pure substance क्या है कि इनका definite composition होता है, fixed melting point होता है, fixed boiling point होता है और density भी इनकी fixed रहती है. It is totally homogeneous in nature, मतलब आपस में एक दूसरे में इतने अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि हम distinguish नहीं कर सकते कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट है. मतलब सिर्फ एक ही पार्टिकल के बने होंगे ये. एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर वेरियस एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर प्योर सब्सटेंसेस. इफ यू हैव अ कॉइन ऑफ प्योर गोल्ड और सिल्वर, द प्योरिटी वुड बी सेम थ्रू आउट द कॉइन. अब बात करते हैं मिक्सचर की.
मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं. A mixture contains two or more kinds of particles of different substance in a manner that particles can be separated by physical means. अब मिक्सचर भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, एक होते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर. तो होमोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इतने अच्छी तरह से मिले होते हैं कि हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि आपने एक ग्लास पानी लिया और उसमें एक चम्मच आप नमक को अच्छे से स्टर कर देंगे, फिर क्या होगा, वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्टी. क्या अब इस सॉल्ट सोल्यूशन में से आप सॉल्ट सेपरेट कर सकते हो हाथ से या चम्मच से? नहीं कर सकते. तो इसीलिए ये मिक्सचर कैसा हुआ, ये एक होमोजेनस मिक्सचर हुआ. लेकिन क्या हम सॉल्ट को पानी से सेपरेट कर सकते हैं वैसे? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ इवेपोरेशन. हम इस अगर पानी को हीट कर देंगे तो सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर वेपर अलग हो जाएगा. So this type of a mixture is a homogeneous mixture. आप चीनी को पानी में डिसॉल्व कर लीजिए. Sugar plus water also makes a homogeneous mixture. Mixture which has same composition throughout is known as homogeneous mixture. For example, when salt is added to water and stirred, the result of the mixture has same color and taste throughout its bulk. दूसरे मिक्सचर होते हैं heterogeneous mixture. हेट्रोजेनस मिक्सचर बच्चे वो होते हैं जिसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो हमें विजिबल होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं. द मिक्सचर विच डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर. जैसे कि सॉइल के अंदर सैंड भी प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर क्ले भी है, सॉइल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है. सो दीज इट मेक्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. ऐसे ही हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है आयरन फिलिंग और सल्फर का. When iron fillings and sulfur powder are mixed, the mixture is called heterogeneous, as the uniformity of the resulting mixture is not same throughout. Properties of a mixture. In a mixture, the components are present in any proportion. A mixture does not have specific boiling and melting point. Component of the mixture can be separated by means of any physical means. Examples of mixture: salt plus water, sugar plus water, sand plus water, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर. बच्चों एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर. आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दिखाई तो नहीं दे रहे ना आप उनको एनी फिजिकल मीन से सेपरेट कर पाते हो. सो इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट देम. हम सेपरेशन के लिए किस किस चीज का सेपरेशन कर सकते हैं बच्चों? सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, separation of insoluble solids from liquid, separation of soluble solids from liquid. तो पहले हम देखते हैं separation of solids from solids. The solid component of the mixture can be separated on the basis of size, weight and magnetic nature. जैसे कि hand picking. अब आपने घर में देखा होगा जब मम्मी घर में दाल बनाती है या चावल बनाती हैं तो मम्मी उसमें से क्या हैंड पिक करती हैं? कंकड़ हैंड पिक करती हैं. कोई दाल खराब है तो उसको पिक करती हैं. So by this मम्मी क्या कर रही हैं? She is removing the undesirable substances from the useful substance. In hand picking, undesirable solid substances or impurities are separated from useful solids by hand. For example, we can see our parents often hand picking things like stones, insects and broken grains from rice and pulses before cooking them. Hand picking is used in the following situation. सबसे पहली बात है कि इनके sizes में difference होता है. The undesirable substances differ from the useful substances in shape, size and color. The quantity of mixture is less. ऐसे वाले जो substances होते हैं जो ज़रूरत के नहीं हैं वो कम amount में present होते हैं, इसलिए easily उनको हम hand pick कर सकते हैं. The undesirable substances are present in small quantity. Activity. To understand the method of hand picking for separating different components from a mixture of chickpea, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम्स एंड राइस. तो इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए, किडनी बीन्स चाहिए, राइस, चिकपीज एंड ग्रीन ग्राम. हम क्या करेंगे? हम एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे अनइक्वल अमाउंट ऑफ चिकपीज, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम्स एंड राइस. फिर हम क्या करेंगे? इस मिक्सचर को अच्छे से स्टिर कर देंगे. यूजिंग योर हैंड ट्राई टू पिक आउट चिकपी, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड राइस सेपरेटली फ्रॉम द मिक्सचर. Compare how easy or difficult it was to separate the component by hand picking. तो बच्चों जो larger components हैं जैसे कि kidney beans हैं या chickpea है, इनको तो आप easily remove कर लोगे, लेकिन जो दाल के दाने हैं उनको उठाने में हमें दिक्कत आएगी.
The larger components such as chickpea and kidney beans were easy to separate by hand, while a small component like green grams and rice may have been more challenging to handle. Hand picking is an effective method for separating larger component of a mixture, but it may not be suitable for separating smaller and small size component easily. Then sieving. Sieving is a very good method for separation of undesirable substances from desirable substance on the basis of size of the substance. भाई जो जिनका साइज छोटा होगा वो तो इजीली सीव में से पास हो जाएंगे, लेकिन जिनका साइज बड़ा होगा वो सीव में ही रह जाएंगे। जैसे कि मम्मी आटा छानती हैं, है ना, आटे को साफ करती हैं, तो आटा जब मम्मी छानती हैं तो क्या करती हैं, छन्नी में से उसको पास करती हैं। आटे के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, सो दे इजीली मूव आउट, लेकिन जो शैफ होती है वो ऊपर ही रह जाती है सीव में। Sieving is used for separating components of a mixture on the basis of particle size. A sieve is usually made of woven screens such as mesh or net. The size of the pores of sieve depend on the size of the particle of the constituent to be separated. Pores in the sieve allow the smaller component of the mixture to pass through and retain the larger ones. So, जैसे हमने बात करी थी, जिन पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा वो इजीली सीव के थ्रू पास हो जाएंगे और जिनका साइज बड़ा होगा वो सीव पे ही रह जाएंगे। A sieve is commonly used at home to separate bran from the wheat flour. Sieving is also used for separating gravel from sand. अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके देखा होगा तो वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी सीव्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो ग्रेवल को रिमूव कर सके सैंड से। A sieve with bigger pores is used as construction site to separate stones from sand. Activity: to understand the process of separation by using sieve by using different mixtures. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें sieve चाहिए, salt चाहिए, chickpea चाहिए, powdered sugar and wheat flour. Mix the powdered sugar and salt in a bowl. तो अब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा सॉल्ट है, कौन सा पाउडर शुगर है, नहीं। Now pass this mixture through the sieve and observe what remains in the sieve and what passes through. दोनों के ही पार्टिकल साइज छोटे हैं तो दोनों ही सीव में से पास हो जाएंगे। Mix wheat flour and chickpea in another bowl. Pass the mixture through sieve and observe the separation of component. तो हम क्या देखेंगे कि chickpeas जो है वो तो सीव पे रह जाएंगे, लेकिन जो wheat flour है वो पास हो जाएगा सीव से। The powdered sugar and salt mixture both component pass through the sieve. क्यों? क्योंकि दोनों के ही पार्टिकल साइज कैसे हैं, छोटे हैं। वहीं अगर हम चिकपी और फ्लोर की बात करें तो चिकपी लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे एंड व्हीट फ्लोर विल पास क्योंकि उसके पार्टिकल साइज छोटे हैं। Conclusion: sieving is effective method for separating components of different sizes. It works well when there is a significant size difference between the components, like in the wheat flour and chickpea mixture. However, when particles are of smaller size, like in case of powdered sugar and salt, sieving may not be useful for separating. Children, another method of separation is threshing, जो कि हमारे farmers use करते हैं to separate the grains from paddy. When paddy, wheat or mustard crops become ready for harvesting, the stalks are cut. स्टॉक्स को कट किया जाता है और उन्हें सन में ड्राई किया जाता है। उसके बाद इन ड्राई जो हमारे स्टॉक्स हैं इसको हम बहुत अच्छे से बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। या तो हम हैंड्स की सहायता से कर सकते हैं या आजकल एक मशीन आती है जिसको थ्रेशर बोला जाता है, उसकी सहायता से ये काम किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये ग्रेन्स और स्टॉक को आपस में सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज चिल्ड्रन विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, इसके अंदर जो आपका वीट होता है, वीट के साथ में शैफ अटैच्ड होता है, दैट इज द सीड कोट। आपने उसको ड्राई कर लिया तो सीड कोट भी ड्राई हो गया। नाउ दिस सीड कोट इज लाइट इन वेट, तो इसको क्या करते हैं, इसको विनो किया जाता है। Winnowing is an age-old method of separating chaff from grains and pulses. It is extremely simple and effective method of separating lighter and heavier solid substances from a mixture. तो इसमें बेसिस क्या हो गया सेपरेशन का कि एक पार्टिकल लाइट इन वेट होगा और दूसरा पार्टिकल जो है वो हेवियर होगा। Chaff is the outer covering of the seed grain, तो ये लाइटर है और जो ग्रेन है वो हैवी है। तो जब हम इसको विनो करते हैं तो विंड की सहायता से क्या होता है, शैफ बीइंग लाइटर वो दूर जाके गिर जाता है और जो ग्रेन है वो वहीं गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को अपने यूजफुल ग्रेन से सेपरेट कर लेते हैं। When the mixture of light and heavy solid substance are dropped from a height, wind carries the lighter substances away, thus separating the lighter and heavier material from a mixture.
Nowadays, winnowing is also done by machines. Now, to understand the separation method of winnowing to separate lighter and heavier component from a mixture, इसके लिए बच्चों हमें चाहिए dry sand, powder dry leaves, plate and open area with a raised platform. Magnetic separation. Now, कुछ substances बच्चों ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कॉपर, निकल, कोबाल्ट. तो ये सब्सटेंसेस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हमारे किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट से आके अट्रैक्ट हो जाएंगे और मैग्नेट को चिपक जाएंगे. इसलिए हम इजीली उन्हें अपने मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं. In a mixture where one of the component is magnetic in nature and the other is non-magnetic, the component can be separated using a magnet. For example, iron is magnetic while sand is not. तो अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें आयरन और सैंड दोनों प्रेजेंट हैं, तो iron particles can be removed with the help of magnet or sand will be left behind. Separation of insoluble solids from liquids. तो children, इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो सेडिमेंट एंड डिकेंटेशन भी इसी बात पे इसका प्रिंसिपल यही है कि जो हेवियर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं और जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं वो फ्लोट करते हैं. तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, उसको आप अच्छे से स्टर कर दो, देन यू अलाउ इट टू रेस्ट फॉर सम टाइम. तो हम क्या देखेंगे कि सैंड के पार्टिकल्स क्योंकि हेवियर होते हैं पानी से, वो नीचे बैठ जाएंगे एंड देन उसके बाद जो क्लियर लिक्विड है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा. अब आप धीरे से इस पानी को रिमूव कर सकते हो दूसरे बीकर में एंड सैंड विड बी लेफ्ट बिहाइंड. तो जब हमने इस पानी को सेपरेट किया तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. इसीलिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बोथ प्रोसेसेस गो वन बाय वन. Now have a look on track your progress children. A mixture having same composition throughout. ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से. It is called as homogeneous mixture. Process of separating grains from the stalk. इसे बोलते हैं threshing. Any substance made up of only one kind of particle is called as pure substance. So बच्चों, जैसे कि हमारे पास सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन हम पढ़ रहे थे, तो अगर हमारे पास कोई भी dirt है, when dirt and other heavier component in mixture settle at the bottom of the vessel, when water is added to it, the process is called sedimentation. The particle settle down. जो particles नीचे बैठ गया है इसको हम बोलते हैं, जो settle down हो जाता है at the bottom उसको हम बोलते हैं sediment, और हमारा clear liquid जो है वो ऊपर इसके इकट्ठा हो जाता है. The process of separation is used to separate sand etc. from water. When dirt particles have settled, the clear water which forms the upper layer is moved into a different container and dirt is done away with. Decantation is a process. अब हमने क्या किया, जब हमारा सेडिमेंट नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो ये जो क्लियर लिक्विड बचा है ऊपर की साइड, इसको हम दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं एंड दस वाटर और सैंड को हमने इस तरीके से सेपरेट कर लिया. दिस मेथड इज कॉल्ड एज decantation. Decantation is the process of pouring out liquid layer above the sediment without disturbing the sediment. If the solid dissolves in the liquid, decantation cannot be used to separate them. Decantation is also adopted for separating two immiscible liquids. Children, अगर हमारे पास दो immiscible liquids का भी मिक्सचर है तो उसको भी हम decantation की सहायता से रिमूव कर सकते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर. तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसे बोला जाता है सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में ऑयल की लेयर जो होती है, बीइंग लाइटर इन वेट, फ्लोट्स ऑन दी वाटर. वाटर नीचे की तरफ आ जाता है, दैट इज इट फॉर्म्स द बॉटम लेयर. उसके बाद हम टैप ओपन करके वाटर को रिमूव कर लेते हैं और जो हमारा ऑयल है वो उसी सेपरेटिंग फनल में रह जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में यहाँ पर लगी होती है एक स्टॉप कॉक. तो आप क्या देखते हो कि ऑयल की लेयर सेपरेट बन गई है, वाटर की लेयर सेपरेट बन गई है. आपने स्टॉप क्लॉक खोली तो सारा वाटर इसमें आ जाएगा, इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही ऑयल की ड्रॉप आने लगे आप एकदम से स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे. ऑयल जो है हमारा फनल में ही रह जाएगा और वाटर जो है वो बीकर में इकट्ठा हो जाएगा. Now have a look on Wikipedia.
Chromatography is an analytical chemistry method that can separate, identify and determine the quantities of the component. Have a look on activity 4, children. To understand the process of sedimentation and how alum helps in faster settling of suspending particles in water, इसके लिए हमें चाहिए beaker, sand, glass rod, water, a piece of alum. Alum is fitkari. Another beaker. Fill a beaker with water and add a small amount of sand to it. उसके बाद आप sand को stir कर दोगे. तो now you add a piece of alum to the mixture. तो हम क्या देखेंगे कि alum जो है it will cause the sand particles to settle down at the bottom more fast. जल्दी से जल्दी हमारी जो सैंड है वो फटाफट से बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एलम के जो पार्टिकल्स हैं ये सैंड पार्टिकल्स को और हैवी बना देते हैं. इस प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग. तो जब ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इन द अपर लेयर. फिर हम इसे वैसे ही डिकेंटेशन से रिमूव कर लेंगे और सैंड पार्टिकल्स विल बी रिमूव्ड. Observation: alum cause the sand particles to settle more quickly than they would without it. The water becomes clearer after sedimentation process. Alum act as coagulant. तो इसने क्या एक्ट किया है? As a coagulant and the process is called as बच्चों loading. तो loading में क्या होता है? एलम के जो particles हैं वो sand particles को heavy बना देते हैं. Helping to speed up the process of sedimentation by causing suspended particles to clump together and settle at the bottom of the beaker. This method can be used to purify water by removing suspended impurities. Now another activity to separate sawdust and salt from a mixture using method of filtration. तो इसके लिए हमें चाहिए sawdust, water, funnel, glass rod, measuring cylinder, salt, beaker, filter paper and stirring rod. Procedure क्या है इसका? Mix a small amount of sawdust and salt in a beaker. आप sawdust लेंगे और उसमें salt को mix कर देंगे. फिर इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाए. आप क्या देखोगे कि सॉडस्ट जो है ये पानी में सॉल्युबल नहीं है. अब हम क्या करेंगे? स्टर द मिक्सचर थ्रूली विद अ ग्लास रॉड टू इंश्योर दैट द सॉल्ट डिसॉल्व्स कंप्लीटली. अब एक फिल्टर पेपर फोल्ड करेंगे, उस कोन बनाएंगे उसका और उसे प्लेस करेंगे हम अपनी फनल में. एंड देन वील पास दिस मिक्सचर थ्रू दिस फिल्टर पेपर. कलेक्ट द फिल्ट्रेट. लिक्विड पार्ट जो है वो आपका एक क्लीन कंटेनर में सेपरेट आउट हो जाएगा और आप क्या देखोगे कि जो सॉडस्ट के पार्टिकल्स हैं वो यहीं फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे. ऑब्जर्व द रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड लिक्विड कलेक्टेड. द सॉल्ट शुड डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग सॉल्यूशन व्हाइल सॉडस्ट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर. The filtrate containing in the container clearly indicates that salt has been successfully separated. Conclusion: the activity demonstrates the process of filtration where the sawdust is separated from salt solution. This experiment illustrates how mixture can be separated by using different physical methods, highlighting the importance of technique like filtration in scientific experiments. तो children, filtration क्या process हुआ? Filtration एक ऐसा process है जिसमें हम insoluble solid को liquid से separate कर सकते हैं by using a filter. तो filtration करने के लिए हम हमेशा लैब में फिल्टर पेपर का यूज करते हैं. ऑन फिल्टरेशन इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू और क्लियर लिक्विड जो हमें ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं फिल्टरेट. द पार्टिकल साइज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड शुड बी लार्जर देन द पोर्स ऑफ फिल्टर. ओनली देन दे आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. Clickypedia: sometimes very fine particles of solution pass through filter paper and solution looks turgid. In that case, technique called loading is used. It is a method by which fine particles of solution are made heavy by adding alum. The method of filtration is used to separate materials like tea leaves from tea. जैसे मम्मी घर में चाय पत्ती को सेपरेट करती है ना चाय से, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको फिल्टर कर रहे हैं. Mud from muddy water, pulp from fresh juice and for preparation of cottage cheese. Separation of soluble solid from their solution. Now children, आपको पता है जो sea water होता है या जो ocean water होता है वो salty होता है because उसके अंदर salt जो है वो dissolved होता है. लेकिन क्या आप देखते हो किनारों पे जब जहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है सन की हीट की वजह से, वहाँ पे सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है. सो इवेपोरेशन हुआ है वहाँ पे. इवेपोरेशन इज अ मेथड जिसमें हम एक क्या कर सकते हैं? हम सॉल्युबल सॉलिड को दूसरे उसके सोल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं.
Evaporation, it is a method used to recover a dissolved solid component from a solution. In this process, solution is heated. Activity, to separate the mixture of mud and water by filtration. तो इसके लिए हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, बीकर चाहिए, फनल चाहिए, सर्कुलर फिल्टर पेपर, मड एंड वाटर. तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मड और वाटर को एक बीकर में अच्छे से लेंगे और उसको स्टर कर देंगे. नाउ टेक अ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट ट्वाइस टू फॉर्म अ कोन. एक कोन बना के उसको अपनी फनल में लगा देंगे. नाउ पोर द मडी वाटर इन द फ्लास्क थ्रू द फनल. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो फाइन मड पार्टिकल्स हैं, सेपरेट द फाइन इनसॉल्युबल मड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड एंड द वाटर दस ऑब्टेन्ड इज क्लियर. तो जो जितने भी मड पार्टिकल्स थे वो इस फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाएंगे और क्लियर लिक्विड जो है वो हमारा बीकर में कलेक्ट हो जाएगा. सो दिस मेथड शोज कि जो ऊपर रेजिड्यू रह गया उसमें क्या प्रेजेंट है, मड प्रेजेंट है, और नीचे जो क्लियर लिक्विड हमें ऑब्टेन्ड हुआ है उसे हम बोलेंगे फिल्टरेट. The substance that collect in the filter paper is called the residue and water that passes through is called the filtrate. तो जैसे हम इवेपोरेशन की बात कर रहे थे बच्चों, इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड पार्ट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग द सॉल्ट्स बिहाइंड. सॉलिड पार्टिकल जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगा. The common salt is mostly prepared naturally from sea water by this method. Sea water is collected in shallow ponds. हम sea water को collect कर देते हैं, उसके बाद हम उसको अलाउ करते हैं कि वो उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाए बाय द हीट ऑफ सन. तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे जो रह जाएगा वो होगा सिंपल सॉल्ट. इसको समझने के लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं. टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड टू अंडरस्टैंड ओनली दैट वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द कॉपर सल्फेट. तो इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट चाहिए, वाटर, चाइना डिश, हीट सोर्स और एक स्टायरिंग रॉड. प्रोसीजर क्या है बच्चों इसका, हम एक चाइना डिश लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी. ग्रेजुअली ऐड कॉपर सल्फेट टू द वाटर व्हाइल स्टीयरिंग अंटिल नो मोर कॉपर सल्फेट डिसॉल्व. तो इसका मतलब क्या है कि हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करेंगे. हम पानी में तब तक कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे जब तक कि वो उसमें डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए. Place the china dish on the heat source and turn on heat. इसके बाद आप इसे हीट सोर्स पे रखेंगे और इसमें इसको हीट प्रोवाइड करेंगे. Heat the mixture gently and observe the change. Allow the water to evaporate completely. As the mixture is heated, water begins to evaporate, producing water vapor. तो हम क्या देखते हैं कि water जो है evaporate होना शुरू हो जाएगा in the form of water vapor. After some time you will notice that the water level decreases. धीरे धीरे हमें नोटिस होगा कि पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है और धीरे धीरे सारा ही पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाएगा, leaving behind copper sulfate. This experiment demonstrates that when a mixture of copper sulfate and water is heated, only the water evaporates. तो इससे हमें क्या पता चला कि सिर्फ पानी इवेपोरेट हुआ है, copper sulfate इवेपोरेट नहीं हुआ. While copper sulfate remains, this shows different substances have different physical properties such as boiling point which allow us to separate them through evaporation. Now condensation. बच्चों कभी कभी जैसे आपने वाटर वेपर को आपने वाटर को हीट किया तो उससे क्या बन गया, वाटर वेपर. और अगर हम इस वाटर वेपर को ठंडा कर दें तो ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो. जैसे कि आपने एक फ्राइंग पैन लिया और उसमें वाटर को आप बॉईल कर दो. नाउ कवर इट विद अ लिड. उसके बाद जब हम लिड उठाकर देखते हैं तो लिड पे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. दैट मीन्स क्या हुआ कि वाटर बॉईल हुआ, गर्म हुआ तो वो किस में चेंज हुआ, स्टीम में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ. जैसे ही वाटर वेपर ऊपर की तरफ को राइज करेगा, अब वो किससे जाके मिला, लिड से जाके टकराया जो कि ठंडी थी. उसने इस स्टीम को या वाटर वेपर को ठंडा कर दिया. ठंडा होने पर स्टीम या वाटर वेपर चेंजेस अगेन टू वाटर. इसीलिए हमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वहां देखने को मिलती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. The liquid that evaporates can be recovered by the process of condensation. In this process, vapor is converted into liquid form. If we cover an evaporating dish in evaporation experiment with a lid for some time and then remove it, we will find water drops on the inner side. Inner side में आप water drops देख सकते हैं. These water drops are condensed water vapor. For example, to get back the water that evaporates, hold a cold steel plate above the evaporating dish.
As the steam cools on coming in contact with the plate, it condenses to form liquid water. Activity: to carry out the process of evaporation and condensation, इसके लिए हमें एक spirit lamp चाहिए या Bunsen burner, tripod stand, wire gauze, metal plate, glass bowl and match box. हम क्या करेंगे, हम गैस जलाएंगे और ऊपर अपनी एक चाइना डिश में हम पानी को हीट करेंगे. तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद आप इसके ऊपर एक ग्लास को इन्वर्ट कर देंगे. जब हम बर्नर को रिमूव करेंगे, हम क्या देखेंगे, आफ्टर हीटिंग वाटर फॉर सम टाइम, हम ऑब्जर्व करेंगे ऑन हीटिंग द वाटर इन द प्लेट इवेपोरेट्स, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जैसे ही ये ग्लास में ऊपर राइज करेगा, अब ग्लास कैसा है, ठंडा है, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, पहले तो इवेपोरेशन हुआ था, पानी गर्म हुआ जिसकी वजह से वाटर वेपर बना, लेकिन जब ये ग्लास में ऊपर राइज कर रहा है तो ग्लास तो ठंडा है, तो इट विल कंडेंस द वाटर वेपर अगेन टू फॉर्म वाटर और ग्लास की साइड्स में हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इजीली विजिबल होंगी. तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, आफ्टर इवेपोरेशन वी हैव कंडेंसेशन, व्हेन वाटर वेपर रीचेस द टॉप ऑफ ग्लास इट कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स. नाउ लुक एट ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन. Sugar and water can be separated by sedimentation. नहीं, हम इसको sedimentation से separate नहीं कर सकते. This is false. Oil can be separated from water with the help of separating funnel. बिल्कुल सही बात है. This is true. Separation of a mixture of two liquids. तो बच्चों जैसे हमारे पास milk and water है, उसको अगर हम अच्छे से mix कर देते हैं तो ऐसे liquids जो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं, उन्हें तो हम बोलते हैं miscible liquids. लेकिन ऐसे लिक्विड्स जो आपस में ना मिले, जिनको हम मिक्स करें तो वो मिक्स ना हो, ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे ऑयल एंड वाटर. सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, अगर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. हमने अभी डिस्कस किया था कि सेपरेटिंग फनल में दोनों की ही अलग अलग लेयर बन जाएगी. Oil being lighter than water will float on the surface of water. फिर हम यहाँ से टैप ओपन करेंगे, वाटर जितना भी है सारा यहाँ कलेक्ट हो जाएगा. जैसे ही ऑयल यहाँ तक पास होने लगे आप एकदम से टैप बंद कर दो, तो ऑयल जो है वो सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा और वाटर विल बी कलेक्टेड इन द बीकर बिलो. सेपरेशन ऑफ सैंड, ऑयल एंड वाटर. बच्चों अगर हमें सैंड दिया हो, ऑयल दिया हो और वाटर दिया हो तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं. Now children, separation of two miscible liquids. अगर हमारे पास ऐसे liquids हों जो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें कैसे separate करें, जैसे अल्कोहल और वाटर है, तो अल्कोहल और वाटर को तो आप इजीली सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है कि दो लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, उनको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. तो आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना होता है, 78 डिग्री होता है, और वहीं अगर हम पानी की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है. तो कौन पहले बॉईल करेगा, अल्कोहल पहले बॉईल करेगा, तो अल्कोहल बॉईल होके वेपर में चेंज हो जाएगा. देन इट इज पास थ्रू कंडेंसर. तो जैसे ही लिक्विड जो है हमारा वेपर में चेंज होगा, इट विल राइज अप. फिर हम उसको पास करेंगे अपने कंडेंसर में से, जहां वो ठंडा हो जाएगा और हम उसको फिर दूसरे बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं. इस तरीके से हम वाटर और अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं. Miscible liquids such as alcohol and water can be separated by the method of distillation. When mixture of miscible liquids is heated, liquid with lowest boiling point gets evaporate first. Its vapor pass through condenser. Here vapors are cooled and converted into liquid form. The other liquid remain in the flask. क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच ही नहीं हो पाता, इतनी देर में हमारा अल्कोहल जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा. डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, gasoline, kerosene, paraffin and many other liquids are obtained commercially by this method. Use of more than one method of separation. Children, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो हमारे पास मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उन सबको सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स भी यूज करने पड़ते हैं. एक ही मेथड से सारे के सारे पार्टिकल्स या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस रिमूव नहीं हो सकते. We have learned that pebbles can be separated from food grains by hand picking, grains can be separated from chaff by winnowing, and sand can be separated from water by filtration.
In all above mixtures, separation of substance is done by just one method. It is not always possible to separate components of mixture by using one method. For example, we can separate oil, clean sand and water from a mixture by using just one method. First, we must allow the mixture of water, sand and oil to stand. तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें ऑयल है, सैंड है, वाटर है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टर करके एक बीकर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप क्या देखोगे कि ऑयल जो है बीइंग लाइटर इन वेट फ्लोट करेगा वाटर पे एंड इट विल फॉर्म द टॉप लेयर। और वही सैंड के पार्टिकल्स कैसे हैं, पानी से हैवी हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में और पानी हमारा जो है वो मिडिल में इकट्ठा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिकेंटेशन करेंगे। हम धीरे से इस बीकर में से सैंड को सेपरेट कर लेंगे, ऑयल को सेपरेट कर लेंगे एक अनदर कंटेनर में, तो हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब हमारे पास जो मिक्सचर बचा रह गया उसमें क्या है, पानी है और सैंड है। अब आप इसको फिर से थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ देंगे तो क्या होगा, सैंड वापस से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और क्लियर लिक्विड जो है इट विल फॉर्म द टॉप लेयर। अब फिर से इसका डिकेंटेशन कर लेंगे तो वाटर सेपरेट हो जाएगा और सैंड विल बी सेपरेटेड। तो आपने सिर्फ एक मेथड यूज करके क्या किया, तीन चीजों को सेपरेट कर लिया। नाउ चिल्ड्रन, सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इज नोन एज अ सॉल्यूशन। जैसे कि आपने पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। इसको अगर आप पी के देखोगे तो आपको कैसा टेस्ट लगेगा, सॉल्टी लगेगा। तो इसके हर कंपोनेंट में से, चाहे आप उसमें से थोड़ा सा सिप लो या ज्यादा सिप लो, सारा का सारा पानी ही हमें सॉल्टी लगेगा। दैट मीन्स ये कैसा मिक्सचर है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जिससे हम डिसॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। जैसे कि पानी में हमने किसको डिसॉल्व किया था, नमक को, तो नमक क्या हुआ, इट इज अ सोल्यूट। और जिसमें हम डिसॉल्व कराते हैं दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। तो आपने नमक को किस में डिसॉल्व किया था, पानी में डिसॉल्व किया था, तो पानी क्या हुआ, पानी हुआ हमारा सॉल्वेंट। तो जो चीज कम अमाउंट में यूज होती है दैट इज द सॉल्यूट एंड जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। सॉल्ट क्या हुआ, यहाँ पे सोल्यूट हुआ क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ऐसे ही शुगर को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करती हूँ तो शुगर मेरी सोल्यूट हुई क्योंकि वो कम है, और पानी जो है वो सॉल्वेंट हुआ क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। Solubility is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent. On the basis of solubility, solutions को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है बच्चों, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने एक चम्मच नमक डाल दिया, नमक डिसॉल्व हो गया, फिर आपने फिर डाला, डालते गए, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब नमक डिसॉल्व होना पानी में बंद हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन हमें अब मिला है उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated solution. Supersaturated solution क्या होता है? A solution is said to be supersaturated when it dissolves more solute that could be dissolved by solvent under normal conditions. जैसे कि आपने घर में मम्मी को चाशनी बनाते हुए देखा होगा, मम्मी पानी में चीनी को डिसॉल्व करती हैं, फिर क्या होता है, फिर मम्मी उसको हीट कर देती हैं। आप एक टाइम देखते हो कि उसके अंदर चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा हीट कर दो, फिर चीनी डिसॉल्व हो जाती है, फिर उसमें और डाल दो शुगर, इट विल डिसॉल्व। तो अब जो स्टेज आएगी दैट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाई सेपरेशन इज नेसेसरी? चिल्ड्रंस, नेसेसरी इसलिए होता है ताकि हम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को डिजायरेबल सब्सटेंसेस से अलग कर सके। We always remove small stones from rice before cooking. तो आप क्या चाहते हो कि हम चावलों को ऐसे ही अगर पका देंगे और उसमें कंकड़ रह जाएंगे तो वो कंकड़ आपके मुंह में आएंगे, they can cause diseases, इसीलिए उन्हें रिमूव करना जो है बहुत ज़रूरी है। Because stones are not required, we remove tea leaves from tea. कभी आपने चाय पत्ती वाली चाय पी के देखी है, कितनी खराब कर टेस्ट की होती है? तो हम क्या करते हैं, हम टी लीव्स को इसीलिए सेपरेट करते हैं ताकि टी का जो टेस्ट है वो खराब ना हो।
We cannot drink tea with tea leaves, hence they are separated. Water comes from rivers and lakes, contain impurities and germs, which are not required. The separation is necessary to remove these impurities. To obtain useful component, भाई useful component obtain करने के लिए ही तो हम separation करते हैं अपने mixture में से. Some substances are useful than the others in a mixture, therefore they need to be obtained by separation of substances. Now activity, to investigate the solubility of sugar in water and to determine the maximum amount of sugar that can be dissolved in a given volume of water. तो इसके लिए हमें चाहिए water, sugar, beaker, stirring rod, measuring spoon. आप क्या करोगे, आप water लोगे beaker में और उसमें 1 चम्मच चीनी की डाल दोगे. उसको अच्छे से स्टेयर करोगे जब तक कि चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती. फिर आप उसमें 1 चम्मच और चीनी डालोगे, उसके बाद उसको स्टर करोगे. कंटिन्यूसली ऐड शुगर 1 by 1, एक स्पून करके हम उसमें डालते रहेंगे और उसको स्टेयर करते रहेंगे ये देखने के लिए कि वो कब तक उसमें डिसॉल्व होती है. स्टॉप एडिंग शुगर व्हेन यू नोटिस दैट नो शुगर इज नो लॉन्गर डिसॉल्विंग इन वाटर. जब हमें दिखेगा कि अब शुगर जो है पानी में डिसॉल्व होना बंद हो गई तो आप उसे रुक जाएंगे. Regardless of how much you stir. Record the total amount of spoonful of sugar that we completely dissolved in water. ये आप record कर लेंगे. Initially, the sugar dissolves completely with each addition. However, at certain point, you will observe that sugar begins to accumulate at the bottom of the beaker and does not dissolve anymore. तो ये क्या दिखाता है उसका? This is the saturation point. अब हमें पता चला कि हमारा जो solution बना है वो saturated solution बन गया है. The experiment demonstrates there is a limit to the amount of sugar that can be dissolved in water at a given temperature, known as the saturation point. This shows the concept of solubility and how it varies with the amount of solute and solvent. Wonderbox children, Joel H. Hildebrand laid the foundation for solubility theory in his classic work on the solubility of non-electrolytes in 1916. See the keywords and explanation. Homogeneous, mixture that has same composition. Heterogeneous, mixture that does not possess a uniform composition. Threshing, separation of grains from chaff of crops. Winnowing, separation of husk from grains with the help of wind. Husk or chaff, dry outer covering of grain. Sedimentation, settling down of insoluble and heavy substances in a liquid. Decantation, pouring out of liquid without disturbing the sediment. Filtration, separation of insoluble solids from a liquid through a filter. Loading, addition of a substance to a mixture to speed up sedimentation. Evaporation, a liquid changing into vapor. Condensation, vapor changing into liquid again. Solution, homogeneous mixture of two substances. Solubility, maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent. Mind map, separation of substances. बच्चों इसमें हम कैसे separate कर सकते हैं? Separation of insoluble solids from liquid. इसके लिए हम कर सकते हैं evaporation, condensation. Separation of solids from liquid. इसके लिए आप hand picking कर सकते हैं, sieving, threshing, winnowing. Separation of insoluble solids from liquid. तो इसके लिए आप लोडिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं. देन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं. इस बेसिस पे हमें पता चल जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन का और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का. और सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. हैव अ लुक ऑन रिव्यू जोन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड threshing. A solution of salt in water is a homogeneous mixture. Common substances used in loading is alum. Which of the following is heterogeneous solution? It is mud plus water. Which of the following process is opposite to evaporation? This is condensation. Fill in the blanks. First one says a homogeneous mixture or two substances is known as solution. The substance present in large quantity in a solution is called solvent. Corn can be separated from husk by the process of threshing. आप यहाँ पे threshing लिखेंगे.
Filtration is used to separate insoluble solid from liquid. The process of separating substance through a sieve is called sieving. State whether the following statements are true or false. Pure water is obtained from seawater by the process of distillation. Nahi, this is false. During condensation, a liquid is converted into its vapor form. Nahi, this is again false. Decantation is followed by sedimentation. Yes, this is true. Particles that settle down at the bottom form the sediment. Bilkul sahi baat hai. This is also true. A mixture of sand and salt can be separated by sieving. Nahi, this is false. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.